सोचना पड़ेगा सोचना कौन से गुफा के बारे में बात करें. Up on that superstition. Many years after that, I encountered Raj Mehta, who's the curator of music in this film. They both came very paranoid and asked me if they could call the film A Good News. So I just said, A Good News is not incorrect English. Paranoid about everything. And it was, personally, it's rather ridiculous, but it's actually everyone. सवाल पहले करण जी से है. सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू, सो प्लीज शेयर दैट. कहानी के पीछे आप कहाँ के पीछे? सर यहाँ. हाँ. अच्छा आप यहाँ. हाँ जी क्या कहा था आपने? सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू, सो प्लीज उसके बारे में बताइए. देखिए बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में, क्रिएटिव दुनिया में, तो मेरा एक सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से. फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में जो ज्यादा नहीं चली, तो मुझे लगा कि ये के अक्षर शायद ये मैं बस ये ऐसा सुपरस्टिशन के साथ मैं बैठ चुका हूं एंड इट्स जस्ट स्टेइंग विद मी फॉर नो रीजन, तो आई गिव अप ऑन दैट सुपरस्टिशन. Many years after that, I encountered Raj Mehta, who's paranoid about everything. And it was, no, you're blaming Akshay? No. It's you, huh? Okay. All right. So he, along with Azim Dayani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me if they could call the film A Good News. So I just said, A Good News is not incorrect English. You don't have a good news, it's good news. So they said, then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man. And I felt that kal ko kuch galat ho gaya, they'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it. And they decided to call it NEWWZ. Personally, it's rather ridiculous, but it's actually, everyone has learned to accept it and really envelop it. So, well done, Raj, thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spellman at Dharma. Okay, Akshay Baji, Kareena and Kiara, आपसे सवाल है कि this is the, if I'm not wrong, please correct me, this is your first attempt to have a slice of life comedy with that comedy of errors वाला script, मतलब ये जो film है. So what was your first reaction when you got the script? मतलब Diljit Paji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of stuff. But what was your first reaction? इसलिए बोलता बोल दे किसको पूछ रहा है? आप तीनों से? तीनों से? हाँ जी. Okay, मुझे बहुत अच्छा लगा था. I still remember कारण ये मुझे एक कहानी सुनाने लाए थे, तो ये मेरे घर पे आए हुए थे, इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन 1.5-2 घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है. फिर मैं बोला और क्या बना रहा है? फिर कहता एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज करके. मैं बोला उसकी कहानी क्या है? फिर उन्होंने करीबन 2 मिनट सुनाई वो कहानी. मैं बोला वो 1.5 घंटे वाली भूल जाते हैं, ये बनाते हैं. तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मजा आया इस कहानी के अंदर. और मैं सच बताऊं तो ये ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी, ये कहीं हुआ भी है और उसको लेके इसको पिरोया गया है. Kareena ji and Kiara, your inputs? When actually Raj narrated the film, I personally thought I was perfect for the part. Yeah, that's the truth. I thought that I really wanted to, do the film. It was funny. It was, I couldn't stop laughing. And I said that why not? I mean, of course, it's a production house that I trust beyond. And I was like, why not? It's a whole package is great. Actually, Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was. But I said, I want to trust Raj and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me, and I was the last one on board. So I knew all three of them were on board, and I was like, this is a huge opportunity for me to work with all of them. This is my first film with Dharma, so that itself was a big moment for me. And for me, like Karan sir said, I'm the junior most here, and there's just so much to learn. It's a character that Raj has given me, which he really worked with me on this one, and I really hope you guys like it. I love the way I become Sir only on this stage. Drop it, babe. Diljit actually was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration and Raj narrated. Kya laga aapko, Diljit?
मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे। शायद लेंगे नहीं फिल्म में। तो मैं सुनने के लिए चला गया था, क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म, तो वो उसमें मैं नहीं था। बट अगर आप ये अच्छी अगर फिल्म वो फिल्म करते तो शायद ये खुशी खुशी ये नहीं कह पाते। वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ वहाँ बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म थी वो, लेकिन हाँ। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम से। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और बहुत मजा आया देख के। 2-2, 3-3 बार भी हम देख सकते हैं। ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है। हम हमेशा जब भी गुड न्यूज की बात करते हैं तो यही होता है कि घर में कुछ कोई बेबी आने वाला है, या इस तरह की बात होती है कि क्या यार कोई गुड न्यूज है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज की डेफिनेशन क्या होती है। आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है, हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, कई बार हमारे डे टू डे चीजें हैं। तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज की? क्या करण, आपके लिए क्या गुड न्यूज हो सकती है? When his parcels of his shopping reach his door. ये मैं सभी से जानना चाहूंगी। देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि गुड न्यूज की जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूं कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि 1-2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूंगा, तो वो गुड न्यूज का ज्यादा, ऑफ कोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माय 2 बेबीज व्हाट दैट फेल्ट। लेकिन गुड न्यूज का जो होता है ना, गुड न्यूज के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज ही आ जाता है। तो आयोलफीस की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में। सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज विद दैट मच जॉय एवर। मुझे लगता है कि हमेशा कि इसके बाद कुछ बुरा ही होने वाला है। आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट। लेकिन गुड न्यूज का बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे तो गुड न्यूज ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे, सबसे बड़ा न्यूज वो है। और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया। करीना, आपके लिए क्या हो सकती है गुड न्यूज? I can't beat that answer, so I don't think we should answer this question. और अक्षय, आपके लिए? मेरे लिए मैं तो बैड न्यूज में भी गुड न्यूज ढूंढता हूँ। सो मैं एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे कुछ भी चीज आप दे दो, मैं उसके अंदर एक गुड न्यूज निकाल के छोड़ूंगा। एंड कियारा, आपके लिए? But really, nobody can beat this answer now. Right now, I think every time I sign a good film that I'm excited about, it's like, oh my Great. god, good. दिलजीत, आपके लिए? फिलहाल तो ये फिल्म जी। जी। एंड करण, एक सवाल मेरा आपसे, एक और सवाल है कि इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी? कि ये सही बात है कि सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट को ही पहला तो उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट को पूरा करना ही होना चाहिए। तो क्या इसके पीछे था? इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? तो कि एक फील गुड वाली मूवी दें या और कुछ आप सोच रहे थे? आई वॉज एक्चुअली, मैं जैसे अक्षय ने कहा कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे, मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो बनाते थे सोशल कॉमेडीज बनाते थे, तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शंस में ऐसी एक फिल्म बनाए दैट विल बी अ सोशल कॉमेडी जो रेलेवेंट भी हो, इमोशनल भी हो, हंसाए भी, रुलाए भी, और एक एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में। आज तक अच्छी धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई जैसे ये है, जैसे ब्रांडेड ऋषि मुखर्जी। तो जब मैं अक्षय के घर गया तो मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म लेके गया, बिकॉज ही इज अ मेगा मूवी स्टार, एंड आई जस्ट फील कि अक्षय में खासियत है, he searches for content, वो कभी स्केल नहीं देखते, वो कभी डायरेक्टर, and I feel that he's one actor who's always supported first time directors, and I think that's very rare for a movie star and a mega movie star in India to do. Yeah. He is हमारा 16th है, अक्षय का 23rd डेब्यू डायरेक्टर है। So I think he's the only superstar in India, I would say, that has worked with so many debut directors. वो कभी नहीं, I think, पूछते कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है। I've been to many actors, narrated many films. हमेशा ये सवाल उठता है कि डायरेक्टर कौन है, उसकी काबिलियत क्या है। I think अक्षय वाइब को सस करता है। तो राज से मुलाकात हुई, कहानी सुना, and within a day the film was locked and signed and ready to go. तो I feel कि मैं ये जब फिल्म बनाना चाहता था तो मेरा जो ख्याल था कि I would actually make an intimate film. अक्षय ने उस फिल्म को स्केल दे दिया, and I would actually think that's an amazing thing for a superstar to do, to just look for content and not worry about its scale and its its opulence. So I think that was my thought. Akshay sir, this is Faridoon on your right, sir. On your right. Hi sir. So congratulations, the promo is outstanding, very, very funny, and I think you're having an amazing year, and I think this will be perfect icing on the cake as far as this year is concerned. The writer of the film is Jyoti Kapoor. She gave the idea of Badhai Ho, which was also had some sort of pregnancy associated with that. So she has a fetish for that, maybe. My question to you is, both the films, I think they are on the similar lines.
And my question to you is that in your phenomenal career, sir, what has been the role of writers in shaping up your career? It's a very, very big role. It's a very, very big role. I think writers are the most important people. मैं अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा डायरेक्टर से भी बड़े राइटर्स होते हैं मेरे हिसाब से. खत्म हो गया. I think it's a tremendous, I think, and I also feel कि अभी सिनेमा जो है डिजिटल की तरह राइटर्स का मीडियम बन चुका है. And I think finally the fraternity is empowering writers. I think that's great because they're empowered, they're doing such strong work and creating such amazing content. Actually, अगर राइटर ना हो तो एक्टर्स भी कोई फायदा नहीं है. चाहे कितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स ले लो आप, उनका कोई फायदा नहीं है. अगर राइटर सही नहीं बैठे, अगर सही कहानी नहीं आए, सही लिखाई ना हो, तो मेरे हिसाब से राइटर्स की बहुत बड़ी अहमियत है. Hi, sir, आपके राइट में. Hi, this is Sohail over here on the left. Congratulations, trailer is super. बहुत मजा आया हमको. ये goof off के बारे में है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप अपने लाइफ में कभी इस तरह की कोई goof off हुई है जहां पर मेरे लिए अक्षय से खास करके पहले वक्त हम बहुत सी शूटिंग इस स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो इसी तरह के कोई goof off हुआ हो where you would like to share something, even Kareena, Karan and everyone, लाइफ में ऐसा कोई memorable goof off हो. सोचना पड़ेगा कौन से goof off के बारे में बात करें. करण आपको याद हो whoever क्या है कि जो goof ups है मैं इस मंच पे बता नहीं सकता. ऐसे बहुत सारे हुए हैं इस मंच के एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन एक्चुअली उनको बताना आई थिंक वो लाजमी नहीं होगा, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा. इट माइट नॉट बी प्रिंटेबल goof ups. Kareena, I think Karan has something answered funny something. Any goof ups, Bebo? quite a few. एक्चुअली यही एक फिल्म सिटी और फिल्मालय के बीच में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. कभी कभी फिल्म सिटी की जगह फिल्मालय पहुंच जाते हैं. यही एक कमाल का मतलब सोच सकता हूँ. और कोई है आपके पास कोई goof off? नहीं, वो क्या है, फोन मैसेजेस पे बहुत सारे होते हैं कभी कभी, गलत मैसेजेस, गलत इंसान को जो पहला नाम वही हो, कभी कभी वो हो जाता है. मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे ऐसे गलत लोगों को सही मैसेज भेजा है. दिलजीत, आप कुछ कहना चाहोगे अगर आपको कुछ ख्याल आता हो? नहीं सर, मुझे करण सर आपके राइट में है, आपके राइट में दाहिनी तरफ. जी जी. अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. हेलो अमित. हाय. करण सर, मतलब 2-3 सवाल थे मेरे. एक तो ये कि पूरा इंटरव्यू ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. कि आपने कहा कि एक मीनिंगफुल कॉमेडी है, इस पे स्ट्रेस किया है, तो मतलब धर्मा किन तरह के चेंजेस के साथ आ रहे हैं मतलब अपनी फिल्मों के पास? देखिए, चेंजेस तो मैं एक्चुअली काफी बार जस्टिफाई भी कर चुका हूं कि धर्मा में हम अलग किस्म की फिल्में, लेकिन कोई मानता नहीं मेरी बात. तो मैं हर साल इसी मंच पे खड़े कहता हूं कि हम अलग फिल्में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते कि हम वही घिसे पिटे फिल्म बनाते रहते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली आई एम डूम्ड बाय रेपुटेशन. जब हमने कहा मीनिंगफुल, ये इसीलिए है क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी. हाँ, बहरहाल हमने ह्यूमर द्वारा इस फिल्म को एक्चुअली पेश किया है, लेकिन अगर आप पिक्चर देखोगे तो परिवार समेत आप देख पाओगे, और कुछ अच्छा आप एक्चुअली you can actually understand a lot of emotions of sacrifice, entitlement, और जो parental emotions होते हैं, और जिस तरह के how we feel that eventually a child is truly a gift from the universe to us, and it doesn't matter which direction it came from. And I feel personally ये film मेरे लिए बहुत ही it's very close to my heart, because as you know that I've had children through an unusual path, and I feel when I saw Good News, I was very, very teary at the end. मैं बहुत रोया एंड में, क्योंकि I just felt कि the film connected to the parent in me. क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, they're nearly 3 years old, and I understood the last act of this film so much. I related to it, it resonated with me, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन emotions बहुत similar थे. तो for me it was a very personal film and will always remain. और करण ने जो मीनिंगफुल बोला था, ये that was a taunt to me after Houseful. No, I love the word houseful, Akshay. That's what we all pray for. करण सर, एक सवाल केसरी को लेकर था. केसरी के हाँ, कि केसरी का जो मतलब शूट चल रहा था जब मतलब वाई में, तो वहां पर सेट जला था और पुलिस की तरफ से हम लोगों को पता लगा था 18 करोड़ का नुकसान हुआ था. तो वो मतलब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो फिर आया मतलब पेमेंट? आई एम नॉट श्योर कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि पहले जो अमाउंट आपने कहा है वो कम है, उससे कहीं ज्यादा है. लेकिन आई थिंक वो लॉजिस्टिक्स को इस मंच पे बात करना वो आई वोंट बी एक्यूरेट एंड वोंट बी करेक्ट. सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न दो. Hi, Karan. Hi, Karan, Akshay, Kareena.
Kiara and Daljit ji. Hello, here. Sarita Singh here. सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग और नई कहानी लग रही है और कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, बहुत मजा आ रहा है देखने में. काफी इंटरेस्टिंग होगी फिल्म. पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से काफी लोग इस तरह की गुड न्यूज आप लोगों की लाइफ में हो चुकी है, पर जिस तरह की ये गुड न्यूज है, अगर इमेजिन करें कि ऐसी गुड न्यूज आप पे घर हो जाए तो कैसे एक्सप्रेशंस होंगे, कैसे कंफ्यूजन्स होंगे? देखिए, ये आप फिल्म पे देखिए ना, हमारे घर पे लाने की कोशिश करें. मैं ये भी चाहूंगा कि आपके भी घर पे ना हो ऐसा कुछ. तो ये बेहतर है कि ये फिल्म पर्दे पर रहे. हाँ, ये एक दो ऐसे किस्से हुए हैं तो उसी को लेके हमने बनाया, बस. ऐसे हम विश नहीं करते कि किसी के साथ हो. Hello, Karan sir, on your right. On your And right. before you ask me the question, I'm going to say that's the last two questions, and we have something special coming from Akshay right after that. Yeah, on your right, sir. Yeah. This is right. Sorry, I'm blank. Yeah, Where no are you? problem. I'm direction dyslexic. Yeah. हाँ, sorry. This is Sakshi from E24. मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली अभी कुछ सालों में फीमेल प्रोटैगनिस्ट को काफी मौके मिल रहे हैं अच्छी स्क्रिप्ट्स करने को, अच्छी फिल्म्स करने को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक्ट्रेसेस ये कंप्लेन करती हैं कि अगर उनके लेवल का भी कोई स्टार हो तो दे आर पेड पीनट्स. सो एज अ प्रोडक्शन हाउस, व्हाट इज धर्मा डूइंग टू चेंज दैट? बिकॉज यू हैव डेफिनेटली ब्रॉट स्क्रिप्ट्स which have women in stronger roles, but what are you doing in this aspect? Thank you. I have to say that, we at Dharma Productions have always maintained the ethos of actually making sure that everyone, and I include men and women and artists and technicians and everyone, gets paid solidly for their craft, their art, their ability, their worth. All of us are here for a blend of commerce and art. None of us are here just for one of them, for both. And it's, of course, something that I endorse very, very strongly. When it comes to female-led films, we've made sure, and we've always made sure, that actually there has never been a disparity at our end. There is now profit share given. There is even sometimes in the near future you'll see a producer credit given to female-led films, where if they dominate the film, they lead the film, then they must have a humongous part of the pie. And you will hear announcements in the future where women-led films that will be made by us at Dharma Productions will have strong producer credits by them, profit shares, back ends, all that is being worked out. There is and there will not be a disparity with our company, and I see that happening in the film fraternity as well. Hi. Akshay, here. At your right. We have just one last question, sir. You already asked. I'm really sorry. We just have one last question. Yes. I yes, do ma'am. have a question. First of all, amazing trailer, all of you. So congratulations and kudos for that. My question is to Akshay. Houseful, आपकी houseful गई है.